قیدی بنائے گئے تمام معصوم بچے قتل کر دیے گئے، بغیر جرم، بغیر سوال کسی فریاد کے۔ اور جو بچ گئیں وہ بیٹیاں تھیں، وہ شہزادیاں جن کے لیے کبھی محلوں کے دروازے کھلتے تھے، جن کے نام پر پردے لرزتے تھے، آج فاتح کے لشکر میں مال غنیمت بن گئیں۔ تاتاری سرداروں اور شہزادوں نے ان پاکیزہ وجودوں کو یوں آپس میں بانٹ لیا جیسے میدان جنگ میں سونا، گھوڑے اور ہتھیار تقسیم کیے جاتے ہیں۔ کسی کی گود سے ماں چھینی گئی، کسی کی آنکھوں سے بچپن، اور کسی کے مقدر سے ہمیشہ کے لیے عزت۔ بدقسمت شہزادی خان سلطان قرائے تقدیر میں جوجی خان کے حصے میں آئی، ایک خوارزم کی شہزادی ایک فاتح کی ملکیت بن کر، اور ترکان خاتون وہ ملکہ جس کے نام سے کبھی سلطنتیں لرزتی تھیں، آج چنگیز خان کی قید میں ذلت، مشقت اور بے بسی کا زندہ نمونہ بن چکی تھی۔ یہ صرف شکست نہیں تھی، یہ تخت کے ٹوٹنے سے کہیں بڑا سانحہ تھا۔ یہاں سلطنت نہیں گری تھی، انسانیت پامال ہوئی تھی۔ یہ وہ سلطنت تھی جس کی شان کے قصیدے بغداد سے لے کر دور دراز دنیا کے محلوں تک سنائے جاتے تھے۔ لوگ اس کے جلال اور سلطنت کے قصے سن کر دہل جاتے تھے اور دشمن لرز کر اپنے گھوڑے پلٹ لیتے تھے، مگر سلطان کی بزدلی نے پوری سلطنت اور اس کے شاہی حرم کو خاک و خون میں تبدیل کر دیا۔ وہی سلطان جس نے اپنی شان کے چراغ بجھنے دیے اور اپنے حرم کے بے گناہ بچوں اور بیگمات کو دشمن کے ہاتھوں چھوڑ دیا۔ اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس دن سے جب ایک عظیم سلطنت کے زوال پر قہر الہی کا پہلا سایہ پڑا اور خوارزم شاہ کی تقدیر پر اپنی قاتل مہر ثبت کر دی۔ سمرقند میں قیام کے دوران چنگیز خان آئندہ لشکر کشیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں سب سے بڑا ہدف ایک ہی تھا: علاء الدین محمد خوارزم شاہ، وہ بادشاہ جو بارہا اس کی دسترس سے بچ نکلا تھا اور براہ راست ٹکراؤ سے گریزاں رہا تھا۔ اسی وقفے میں خوارزم کی صفوں میں دراڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔ دربار کے غدار امراء ایک ایک کر کے تاتاری خیموں کا رخ کرنے لگے۔ ترکان خاتون کے قریبی عزیز اور قندوز کا حاکم علاء الدین سب چنگیز کے حلقے اثر میں آ چکے تھے۔ انہی ذرائع سے خبر پہنچی کہ خوارزم شاہ گھبراہٹ کے عالم میں جنوب کی سمت نکل چکا ہے۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ اگر یہ بادشاہ کہیں ٹھہر گیا، سانس لے لی اور بکھری ہوئی فوج کو سمیٹ لیا تو ایک نیا خطرہ جنم لے سکتا ہے۔ اسی اندیشے نے فیصلہ تیز کر دیا۔ اس نے اپنے دو سب سے آزمودہ سردار جی نویان اور سوبدائی کو 20,000 منتخب شہسواروں کے ساتھ حکم دیا: اس کا پیچھا کرو، زندہ یا مردہ وہ میرے سامنے ہونا چاہیے، چاہے وہ آسمانوں میں چھپ جائے۔ یہ دستہ طوفان کی طرح جنوب کو لپکا، دن میں میلوں کے میل نگلتا، رات کو مختصر وقفہ، خوراک، چند سانسیں اور پھر روانگی۔ ہر سپاہی کے ساتھ کئی گھوڑے تھے۔ یلغار کے دوران بار بار تازہ دم گھوڑا بدلا جاتا، رفتار ایک لمحے کو بھی مدھم نہ پڑتی۔ چند ہی دنوں میں وہ دریائے آمو کے سامنے کھڑے تھے۔ تند و تیز پانی رکاوٹ نہ بن سکا۔ اسلحہ لکڑی اور چمڑے کے بڑے صندوقوں میں باندھا گیا، گھوڑوں کے ساتھ جوڑا گیا اور دمیں تھام کر سپاہی تیرتے ہوئے دوسرے کنارے جا اترے۔ دریا پار کر کے وہ بلخ کے قریب پہنچے۔ اول دستوں نے سراغ دیا کہ خوارزم شاہ مغرب کی طرف نکل چکا ہے۔ لشکر دو حصوں میں بٹ کر اسی سمت بڑھا۔ گمان تھا کہ ہدف مرو ہوگا، سلطنت کا مضبوط شہر جہاں دفاع کی امید کی جا سکتی تھی، مگر جب صحراؤں کی کٹھن راہ کے بعد مرو کے باغات اور سفید فصیلیں سامنے آئیں تو مخبروں نے فیصلہ کن خبر دی: خوارزم شاہ یہاں نہیں۔ ویران آبادیوں سے گزرتا ہوا شمالی ایران کے کوہستانی سلسلوں کو عبور کر کے علاء الدین محمد نیشاپور پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے رفتار میں سبقت لے لی ہے، کہ تاتاری لشکر میلوں پیچھے رہ گیا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ شکاری کتوں کی طرح تاتاری اس کی بو سونگھتے ہوئے تعاقب میں تھے۔ نیشاپور میں چند دن ہی گزرے تھے کہ ہر سمت سے غارت گری اور قتل و غارت کی خبریں آنے لگیں۔ پھر ایک دن خبر نے شہر کی فضا بدل دی: ایک تاتاری دستہ اسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خوارزم شاہ نے فوراً اپنے امراء فخر الملک نظام الدین، ضیاء الملک عارض زوزنی اور معیر الملک عمر کو طلب کیا، شہر کی نگرانی ان کے سپرد کی اور خود شکار کا بہانہ بنا کر خدام و مصاحبین کے ساتھ نیشاپور سے نکل گیا۔ ادھر جی نویان اور سوبدائی راستے میں پڑنے والی بستیوں کو رونتے آ رہے تھے۔ دیہات تاراج، مزاحمت پر تلوار اور ہر قدم پر خوف کی فصل۔ اس وحشت کے سائے میں خوارزم شاہ جہاں سے گزرتا لوگوں کو ایک ہی نصیحت کرتا جاتا:
अपनी जान बचाओ, तातारियों से टक्कर मत लो, शायद यूं उनकी तलवारों से बच सको। यही फरमान सूबों के हाकिमों और किलादारों तक भी पहुंचाया गया, मगर इस कमजोरी ने वो आखिरी हौसला भी तोड़ दिया जो अवाम और हुक्काम के दिलों में बाकी था। किले दरवाजे खोलने लगे, शहर बगैर लड़े हाथ आते गए और लोग मुकम्मल तौर पर दुश्मन के रहमो करम पर आ गए। नैशापुर से आगे बढ़ते ही अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह को एक अंदेशा मुसलसल सताने लगा, कहीं तातारी सवार अचानक दारुल हुकूमत पर न टूट पड़े। इसी खौफ के तहत उसने बर्क रफ्तार घुड़सवारों का एक मुंतखब दस्ता गंजक की जानब रवाना किया, ताकि तुर्कान खातून, शाही हरम की मस्तूरात, उनके बच्चे और शाही खजाना फौरन उसके पास पहुंचा दिया जाए। ये सवार रात दिन एक करके दारुल हुकूमत पहुंचे तो वहां फिजा पहले ही दहशत से बोझल थी। तातारी यलगार की सरगोशियां हर दिल में उतर चुकी थीं। तुर्कान खातून ने कोच की तैयारी शुरू की, इसी महल से जो कभी उसकी ताकत, शबाब और सतवत का मरकज था। ये वही गुलशन था जहां सुल्तान तकिश की ज़ौजियत में उसने शबाब के यादगार दिन गुजारे, जहां सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद की माँ होने के नाते उसका हुक्म कानून समझा जाता था, जहां उसके रौब के सामने बड़े बड़े सर झुकाते थे और जहां आसमान वक्त ने उसके इक़्तिदार का तवील दौर देखा था। आज वही मलिका अपनी वजाहत, अज़मत और दबदबे की अमीन इस खानाए ऐश को छोड़कर एक नामालूम रास्ते पर रवाना हो रही थी। उसे मालूम न था कि इस चमन की तरफ पलटना कभी नसीब होगा या नहीं। शहर से निकलने से पहले तुर्कान खातून ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। दारुल हुकूमत में तकरीबन 20 ऐसे आयान मुकीम थे जो मुख्तलिफ शाही ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और ख्वारिज़्म शाह के उमरा कहलाते थे। मलिका को खदशा था कि अगर दारुल हुकूमत खाली हुआ तो इनमें से कोई तख्त का दावेदार न बन बैठे। इसी अंदेशे ने उसे संग दिली पर आमादा किया। हुक्म सादिर हुआ और सब कत्ल करा दिए गए। एक रिवायत के मुताबिक इन सब को दरियाए आमू में गर्क कर दिया गया। इन मकतूलीन में सुल्तान तुगरिल सल्जोकी के 2 बेटे, हाकिम बिलाद तुर्क के साहिबजादे, बल्ग और वख्श के उमरा, बहराम शाह तुरिंद, अलाउद्दीन बामियान, बुरहानुद्दीन सदर जहान, उनके भाई इफ्तिखार जहान और उनके बेटे मलिकुल इस्लाम और अजीजुल इस्लाम शामिल थे। 616 हिजरी के अवाखिर में जब तुर्कान खातून ख्वारिज़्म से रवाना हुई तो याज़िर का हाकिम उमर खान रहनुमाई के लिए साथ था। ये शख्स अपनी बर्दाश्त और खामोश सब्र के बायस सबूर खान के नाम से मशहूर था। उसकी दास्तान खुद एक अलमिया थी। उसके भाई ने याज़िर पर कब्जा करके उसे अंधा करने का हुक्म दिया था, मगर जलती सिलाई फेरने वाला जल्लाद रहम खा गया। उमर खान ने जान बचाने के लिए अंधे होने का ढोंग रचाया और 11 बरस तक कैद में आंखें बंद किए जिंदगी गुजारता रहा। भाई की मौत के बाद आज़ादी मिली, दुनिया दोबारा रोशन हुई और वो तुर्कान खातून की खिदमत में आ गया। रवानगी के वक्त ख्याल था कि पहले याज़र पहुंचकर कुछ तवत्तुफ किया जाएगा। सफ़र के दौरान उमर खान ने तुर्कान खातून की हर मुमकिन खिदमत की, मगर बदगुमानी और जुल्म उसके मुकद्दर में लिखे जा चुके थे। याज़र के करीब पहुंचकर तुर्कान खातून के दिल में ये शक जागा कि कहीं उमर खान उसे छोड़ न जाए। इसी वहम ने फैसला बना दिया। वफादार रहनुमा को बांधकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जुल्म जब हद से गुजर जाए तो अंजाम भी इबरत बन जाता है। तुर्कान खातून की जिंदगी का इख्तिताम इतना दर्दनाक साबित हुआ कि खुद इबरत भी उस पर अश्क बहाती है। नेशापुर से निकलकर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह ने रे में पड़ाव डाला, मगर सुकून यहाँ भी मुकद्दर न था। ताक़ुब में लगे तातारी दस्ते नेशापुर को रौंदते हुए रे की सिमत बढ़ रहे थे। खतरे की खबर पहुंची तो शाह पर घबराहट तारी हो गई। उसने फौरन रखते सफ़र बांधा और उस किले का रुख किया जहां शहजादा रुकनुद्दीन गौर शाह बेचैनी से उसकी राह तक रहा था। शहजादे के साथ 30,000 इराकी सिपाह मौजूद थी और कुर्दिस्तान का हाकिम मलिक नुसरतुद्दीन भी शाह की खिदमत में हाजिर हुआ। मुशावरत हुई तो ख्वारिज़्म शाह ने मलिक नुसरत से राय तलब की। हाकिम कुर्दिस्तान ने साफ और जुरतमंदाना मशवरा दिया, जहां पना यहाँ ठहरना दानिशमनी नहीं, इराक और फारस के दरमियान एक तंग और दुश्वार गुजार कोहस्तानी सिलसिला है। बेहतर यह है कि हम फौरन वहां कूच करें, घाटियों से गुजरकर अतराफ में मौजूद 1 लाख के करीब प्यादा और सवार को जमा करें और तमाम दर्रों पर मजबूत नाकाबंदी कायम कर दें। जब तातारी वहां पहुंचेंगे तो हम पूरी कुव्वत से मुकाबला कर सकेंगे। अगर इस बार हमारी मुदाफ़ियत कायम हो गई और दुश्मन नाकाम हुआ तो शिकस्त खुर्दा सुल्तानी लश्कर का हौसला भी असरे नौ जिंदा हो जाएगा। ये एक नादिर मौका था, मगर शाह का दिल मायूसी से बोझल था। उसने इस कीमती तजवीज़ को कबूल न किया।
मलिक नुसरतुद्दीन बद्दिल होकर रुखसत हुआ और ख्वारिज़म शाह ने एक बार फिर पसपाई इख्तियार करते हुए माज़ंदरान का रुख कर लिया। इसी दौरान ख्वारिज़म शाह की वालिदा तरकान खातून शाही हरम और ख़जाने के साथ उससे आमिली थीं। मस्तूरात और जवाहरात से लदे भारी संदूकों के बायस काफ़िले की रफ्तार सुस्त पड़ गई। हालात ने मजबूर किया कि सुल्तान कोई और फैसला करे। आखिरकार उसने शाही खजाना अपने मोतमिद अमीर ताजुद्दीन उमर बस्तामी के सुपुर्द किया और हुक्म दिया कि इसे रे के नवाह में वाक़े क़िले अर्दहान मुंतकिल कर दिया जाए। अर्दहान इराक़ के मजबूत तरीन क़िलों में शुमार होता था। ताजुद्दीन उमर के बयान के मुताबिक खजाना 10 अजीम संदूकों पर मुश्तमिल था। हर संदूक हीरों, मोतियों और नादिर जवाहरात से लबरेज और बाकायदा सील शुदा। ख्वारिज़म शाह ने 2 संदूकों की तरफ इशारा करते हुए कहा था, इनमें मौजूद जवाहरात की कीमत पूरी दुनिया के खराज के बराबर है। ताजुद्दीन उमर ने खजाना क़िले अर्दहान में शाह के नायब के हवाले किया और वसूली की तहरीरी रसीद सुल्तान की खिदमत में पेश कर दी। इस हंगामे से निकलकर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह ने माज़ंदरान का रुख किया। ये खित्ता संगलाख पहाड़ों, तंग दर्रों और बहीरा तबरिस्तान के किनारों पर फैले महफूज किलों पर मुश्तमिल था। शाह को उम्मीद बंधी कि शायद यही ज़मीन उसे तातारी पंजों से बचा लेगी, मगर दूसरी तरफ ताक़ुब करने वाले तातारी दस्ते लम्हा बलम्हा करीब आते जा रहे थे। हमदान से कुछ आगे अचानक टकराव हो गया। शाह के साथ अब भी 30,000 के करीब मुहाफिज मौजूद थे, मगर हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि सफ़ें संभल न सकीं। तातारी यलगार में मुहाफिजों की बड़ी तादाद काट डाली गई। खुद ख्वारिज़म शाह तीरों से ज़ख्मी हुआ, मगर चंद मुसाहबीन और शाही हरम के हमरा जान बचाने में कामयाब हो गया। इस हंगामे में उसका वजीर इमादुल मुल्क भी मारा गया। बिलाखिर शाह माज़ंदरान पहुंच गया। इस वीरान कोहिस्तान में उसकी बहन शाह खातून रहती थी और उसका शोहर अर्दशीर हसन सारिया के नवाह का हाकिम था। इन्हीं रिश्तों के सहारे सुल्तान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ की आस नजर आई। शाह ने क़िला क़ारून दर में क़याम किया, मगर सिर्फ एक रात। अगले दिन उसने अपने ख़ानदान के बच्चों और चंद खवास को वहीं रहने का हुक्म दिया। तुर्कान खातून, बेगमात और शहजादियों को माज़ंदरान के एक और मजबूत क़िले ईलान मुंतकिल किया और ख़ुद बज़ाहिर बगदाद के सिमत रवाना हो गया। क़ारून दर का किलादार मुशायत के लिए बगदाद जाने वाली शाहराह तक उसके साथ रहा। किलादार के वापस पलटते ही सुल्तान ने चंद मील आगे जाकर अचानक रुख बदला और उसी दोराहे पर वापस आ गया। यहाँ से वो खामोशी के साथ दीलम के कोहिस्तान की तरफ मुड़ गया। ये चाल कामयाब रही। कुछ अरसा बाद तातारी सुराग लगाते हुए माज़ंदरान पहुंचे तो उन्हें यही खबर मिली कि ख्वारिज़म शाह बगदाद की तरफ गया है। वो उसी शाहराह पर मारे मारे फिरते रहे और हाथ कुछ न आया तो वापस लौट गए। दीलम पहुंचकर शाह ने सरा जहान के किले में क़याम किया, मगर दिल का सुकून कहीं खो चुका था। हसरत, मायूसी, इस्तराब और शिकस्त की जिल्लत ये सब उसके साथ थीं। एक हफ्ता भी न गुजरा था कि उसने वहां से भी कूच कर लिया और गीलान की तरफ चल पड़ा। तातारी खौफ अब उसके आसाब पर सवार था। इसी बेचैनी में एक दिन उसने अपने मुसाहिब से सवाल किया, क्या इस ज़मीन पर कोई जगह है जहां मैं सुकून का सांस ले सकूं? मुसाहिबीन ने मशवरा दिया कि जब तक उसके बेटे और उमरा तातारियों के मुकाबले के लिए क़ुव्वत जमा न कर लें, उसे बहीरा खज़र के किसी जजीरे में रूपोश रहना चाहिए। खौफजदा और हवास बाख्ता सुल्तान ने यह मशवरा फ़ौरन मान लिया। वो चंद खास मुसाहिबीन के साथ भेस बदलकर अजनबी हैयत में खज़र की सिमत रवाना हुआ। कठिन पहाड़ी दर्रों और पेचीदा रास्तों से गुजरकर ये छोटा सा काफिला समुंदर के मगरिबी किनारे माहीगीरों की एक बस्ती में पहुंचा। सुल्तान अब निहायत नातवां और खस्ता हाल था। जहनी और जिस्मानी अजियतों ने उसे बीमार कर दिया था। इस हालत में उसकी शनाख्त छुप जाना उसके हक में बेहतर था, मगर उसने छुपने की कोशिश न की। वो बस्ती की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करता रहा। दिल के इस्तराब से निजात के लिए जिक्र इलाही में पनाह ढूंढता। नमाज, तिलावत और तस्बीह में मशगूल रहकर अंधेरों में रोशनी तलाश करता। कभी माजी की अजमत और खोई हुई दौलत याद करके आहें भरता, कभी मौजूदा बेबसी पर ज़ारो कतार रोता, कभी अपने गुनाहों पर नदामत करता और अहद करता कि अगर इख्तिदार लौट आया तो अदल इंसाफ से हुकूमत करेगा। मगर मुसलसल अजियतों ने उसकी सेहत तोड़ दी थी। रफ्ता रफ्ता बस्ती वालों पर जाहिर हो गया कि ये शख्स कौन है। ये पहचान उसके लिए वबाल बन गई। एक मकामी गद्दार ने तातारियों को उसकी मौजूदगी की खबर दे दी, जो लश्कर ईरान और इराक के पहाड़ों में शाह की तलाश में सरगर्दा था। इत्तला मिलते ही साहिल की तरफ लपका। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर सुल्तान को दुश्मन की आमद की खबर मिल गई। वो साथियों समेत फौरन एक कश्ती में सवार हुआ और समंदर की तरफ निकल गया।
तातारी साहिल पर पहुंचे तो देखा कश्ती बहीरा खजर की लहरों को चीरती हुई दूर जा चुकी थी। शिकार इतना करीब आकर फिर हाथ से निकलता देखकर वो पागल हो गए। कश्ती की सिमत तीरों की बौछार कर दी। कुछ तीर कश्ती में गिरे, कुछ पानी में, मगर कश्ती जल्द ही खतरे की हद से बाहर निकल गई। चंद जुनूनी तातारी घुड़सवार ताक्कुब में समंदर में कूद पड़े और गहरे पानी ने उन्हें निगल लिया। कश्ती बहीरा खजर की बेकरार लहरों पर हिचकोले खाती हुई गहरे पानियों की तरफ बढ़ रही थी। सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह अब अपनी ममलकत की आखिरी हद भी पीछे छोड़ चुका था। हसरत और गम ने उसे तोड़ दिया था। इस्तिराब की शिद्दत में वो कश्ती के तख्तों से टकराता, कफ़े अफसूस मलता और बार बार यही कहता जाता, सुभान अल्लाह, हमारी इतनी अजीम सल्तनत में 2 गज ज़मीन भी नसीब न हुई कि जिसमें हमें दफन किया जा सके। हाँ, दुनिया किसी के लिए ठिकाना नहीं। वो गिरफ्तार तो न हो सका, मगर अब उसकी ज़िंदगी मौत से कम न थी। बिलाखिर कश्ती जजीरा आब सुकून यानी आब सुकून के किनारे लंगर अंदाज हुई। यही मकाम उसके खुद्दाम ने उसकी रोपोशी के लिए चुना था। जजीरे पर एक पुराना उजड़ा हुआ किला खड़ा था, वीरानी का गवाह और अंजाम की अलामत। यहाँ पहुंचकर सुल्तान के इस्तिराब में वक्ती कमी तो आई, मगर दिल की शिकस्त जूं की तूं रही। ख्वारज़म शाह इस जजीरे में एक छोटे से खेमे में पड़ा रहता था। उसके साथ उसके 3 बेटे थे, जलालुद्दीन मंकबरनी, कुतुबुद्दीन उज़लाग और आक सुल्तान। चौथा बेटा गियासुद्दीन अपने ज़ेरे इंतज़ाम सूबे के किसी किले में रह गया था और बाप का दिल उसकी फिक्र में डूबा रहता था। कसम परसी के बावजूद उसका शाहाना मिजाज पूरी तरह न टूटा था। तीमारदारों से कभी कभार ऐसी फरमाइशें कर बैठता जो उसके माजी की याद दिलाती थीं। एक दिन हसरत से बोला, काश मेरे पास एक घोड़ा होता जो मेरे खेमे के गिर्द चल रहा होता। ये ख्वाहिश ताजुद्दीन हसन नामी एक सरदार तक पहुंची तो उसने एक सुर्ख घोड़ा सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। ये वही ख्वारज़म शाह था जिसकी सल्तनत में कभी हजारों चरागाहें थीं और लाखों घोड़े एक इशारे पर हाजिर किए जा सकते थे। आज वो एक मोहताज की तरह एक मामूली सरदार से घोड़ा कबूल कर रहा था। माजंदरान के चंद लोग उसकी हत्तल मकदूर खिदमत करते। कोई खाना ले आता, कोई किसी और ज़रूरत का ख्याल रखता। सुल्तान इन एहसानात का बदला देना चाहता था, मगर पास देने को कुछ न था। चुनाचे वो खिदमत गुजारों के नाम, मनसब और जागीर की रसीदें लिखवा देता। कभी ऐसा भी होता कि लिखने वाला मौजूद ना होता, तब वो खुद कहता, तुम अपने हाथ से रसीद लिख लो, जब हालात बदलें तो ये दिखाकर हमसे हक ले लेना। अलामत के तौर पर वो अपनी ज़ाती इस्तेमाल की कोई चीज़ दे देता, चाकू, रुमाल, इजाफी लिबास या चादर। यूं मौत से पहले वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ दूसरों में बांट चुका था। तवील ज़हनी अजियत, मुसलसल बीमारी और शिकस्त के बोझ ने आखिरकार उसके जिस्म को भी तोड़ दिया। 617 हिजरी में दिसंबर 1220 ईस्वी या अवाइल 1221 ईस्वी के अय्याम में जजीरा आब सुकून ही पर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह दम तोड़ गया। न ताज, न तख्त, न दरबार, एक अजीम सल्तनत का मालिक तन्हाई में दुनिया से रुखसत हो गया। ख्वारज़म शाह खुद अपने वादे पूरे न कर सका, मगर तारीख ने देखा कि शहजादा जलालुद्दीन मंकबरनी ने बाप की दी हुई रसीदों को फरामोश न किया। इक़्तिदार हाथ आया तो उसने इन मकामी खिदमत गुजारों को हस्बे वादा इनामात और जागीरों से नवाजा। बहीरा गजर की लहरों में अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह की सांसें दफन हो चुकी थीं और इधर तातारी अपनी फतेह के नशे में वापस पलट आए। माजंदरान के कले एक एक करके उनके कदमों तले आते चले गए। कलाए कारून दर में शाह के चंद मुसाहिबीन और शाही खानदान के बच्चे पनाह गज़ीं थे। कला फतेह होते ही खवास व उमरा कत्ल कर दिए गए और बच्चों को कैदी बनाकर समरकंद भेज दिया गया। वहाँ चंगेज़ खान के हुक्म पर इन मासूम जानों को बेदर्दी से ख़त्म कर दिया गया। कलाए अर्धान से तातारियों को ख्वारज़म शाही सल्तनत का वो अजीम ख़जाना हाथ आया जिसकी कीमत का अंदाज़ा मुमकिन न था। सोना, चांदी और जवाहरात के अंबार, ये सब भी फातेह के कदमों में लाकर रख दिए गए। कलाए ईलान में तुर्कान खातून, ख्वारज़म शाह की बेगमात, शहजादियाँ, कमसिन बच्चे और वज़ीर ममलकत निज़ामुल मुल्क मोहम्मद बिन सालेह पनाह लिए हुए थे। तातारी 4 माह तक मुहासरा किए रहे, मगर बुलंद फिसीलें न तोड़ सके। फिर तकदीर ने रुख बदला। वो इलाका जो साल भर चश्मों और बारिश से सैराब रहता था, अचानक पानी को तरस गया। बारिश रुक गई, ज़खायर ख़त्म हो गए और प्यास ने जान ले ली किले के अंदर। 10-15 दिन मौत व हयात की कशमकश में गुजरे।
आखिरकार मुहासिरीन ने दरवाजे खोल दिए और खुद को दुश्मन के हवाले कर दिया। और जैसे ही वो बाहर निकले, आसमान पर स्याह घटाएं छा गईं। मूसलाधार बारिश बरसी, यूं के पानी सैलाब की तरह किले के दरवाजे से बहता दिखाई दिया। मगर अब देर हो चुकी थी। कैदियों को जंजीरों में जकड़कर समरकंद भेज दिया गया। वजीर ममलिकत की इल्मी काबिलियत देखते हुए चंगेज़ खान ने उसे कत्ल न किया, बल्कि मुआशी और इंतज़ामी उमूर में मुशावरत के लिए अपने पास रख लिया। कैदी बनाए गए तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। बेगमात और शहजादियां तातारी सरदारों और शहजादों में बांट दी गईं। बदकिस्मत शहजादी खान सुल्तान जोजी खान के हिस्से में आई, और तुर्कान खातून, वो मलिका जिसके नाम से कभी सल्तनत लरसती थी, चंगेज़ खान की कैद में नाकाबिले बयान जिल्लतों और मशक्क़तों का निशाना बनती रही। कैद में बदरुद्दीन हिलाल नामी एक खादिम उसके साथ था। उसने एक दिन फरार का मंसूबा पेश किया। मेरे साथ चलें, यहाँ से निकलकर शहजादा जलालुद्दीन के पास चले जाएं। उसकी फुतूहात की खबरें हर तरफ फैल चुकी हैं। मगर इस हालत में भी तुर्कान खातून की नखवत न टूटी। जलालुद्दीन से नफरत उसके दिल में वैसी ही थी। तिल मिलाकर बोली, जलालुद्दीन का सत्यानाश, मैं इतनी गई गुजरी नहीं कि अपने बेटों कुतुबुद्दीन अजलाग और आखशाह की जगह एक हिंदुस्तानी बहू के बेटे के साए में जीऊं। इससे बेहतर है कि मैं चंगेज़ खान की कैद में यही जिल्लत सह लूं। ख्वारिज़म शाह के ख़ानदान से किले में गिरफ्तार होने वालों में सिर्फ एक मासूम बच्चा जिंदा छोड़ा गया था। तुर्कान खातून उसी से दिल बहलाती थी। एक दिन उसके बालों में कंघी करते हुए आहिस्ता से बोली, आज मेरा दिल ऐसा घबरा रहा है जैसा कभी न घबराया था। इसी लम्हे चंगेज़ खान का भेजा हुआ सिपाही आया, बच्चे को साथ ले गया और हुक्म के मुताबिक उसे भी गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। अब तुर्कान खातून बिल्कुल तन्हा रह गई। चंगेज़ खान कुरुलताई की तकरीबात में तुर्कान खातून को हाथ पांव में जंजीरें डालकर मजमे के सामने बुलाता। उसकी बेबसी और रुसवाई को देख देख कर अपने फातिहाना गुरूर की तस्कीन करता। एक ज़माने की मलिका को अपनी भूख मिटाने के लिए फातिह के दरबार में हाजिर होना पड़ता। वो एक भिखारी की तरह उसके मतबख से रोटी का टुकड़ा लेकर लौटती, और वक्त की सदा आसमान और ज़मीन की वुसअतों में गूंजती रही, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये दास्तान ख़त्म हो गई, मगर दिलों में दर्द, आंखों में अश्क और जहनों में सवाल छोड़ गई। ये वो लम्हे थे जब सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं, मगर इंसानी अलमिये और बेबस औरत व बच्चे की दास्तानें सदियों तक गूंजती रहती हैं। तुर्कान खातून, शहजादियाँ और वो मासूम बच्चे जिन्हें कभी महल की रोशनियों और शहनशाह की मोहब्बत ने सरफराज किया था, आज तातारियों की कैद और ज़िल्लत में दफन हैं। और ये भी याद रखें, ये सिर्फ एक इख्तिताम नहीं, बल्कि अगले तूफ़ान का पेश खैमा है। अगला हिस्सा देखें, जहां जलालुद्दीन मिनकुबर्ती की ताकत, इंतकाम की आग और ख्वारिज़म शाह के नाम का साया दोबारा तारीख़ के सफ़हात में एक ज़ोरदार झोंका लेकर आएगा। ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, और जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी।